Hello students, myself Abhishek Kumar Singh and welcome back to my channel Growing Stars Bharat. I am present once again with a new video. Today we are gonna take up a topic mole concept. Dear student, this mole concept video is made for revision purpose. After learning tips and tricks, formulas, concept and numericals in this video, you will able to understand and do any mole concept numericals. Dear student, in this video, we have included all necessary topics of mole concept. We have also included mole concept numericals with solution and memory chart of mole concept formulas. This video is for students preparing competitive exams and class 11th and 12th student. Dear student, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मास को ग्राम में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं. तो हमारा प्रश्न यह है कि हाउ टू मेजर एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ सच स्मॉलर मैग्नीट्यूड. हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल के स्मॉलर मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं. तो आइए हम उसका प्रश्न के जवाब जानने का प्रयास करते हैं. ये स्टूडेंट्स, just as we denote 1 dozen for 12 items, it can be anything. Means 12 egg equal to 1 dozen, 12 banana is equal to 1 dozen, 12 bangle is equal to 1 dozen. Dear students, similarly, mole is used to count entities on the microscopic level. That is atoms, molecules, ion, particles, etc. तो डियर फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन होता है मोल है क्या. तो डियर स्टूडेंट्स, 1 mole is the amount of substance that contains as many entities or particles as there are present in 12 gram of C12 atom, which is exactly equal to 6.022 into 10 ka power 23 particles. Dear student, here 6.02 into 10 ka power 23 is एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो कांस्टेंट. इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे. और प्रश्न हमारा ये भी आता है स्टूडेंट कि वाई C12 इज यूज्ड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास. हम लोग C12 को ही रिलेटिव एटॉमिक मास में यूज क्यों करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, एटॉमिक वेट आर एन एवरेज ऑफ द रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट. The number of C12 atom is exactly 12 gram of C12 is 6.022 into 10 ka power 23. So C12 is used as a relative atomic mass in calculation of Avogadro number. Friends, relative atomic mass क्या होता है. तो friends, student, the ratio of average of mass of an atom of the element to the 1/12th mass of the carbon atom is defined as the relative atomic mass of any element. Just for example, mass of 1 nitrogen atom is equal to 14 into 1 by 12. 12 means mass of 1 carbon atom. Mass of 1 oxygen atom is equal to 16 into 1 by 12 means mass of 1 carbon 12 atom. Atomic mass unit is 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom. नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रो कांस्टेंट है का. डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूजुअली एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 mole of substance which is equal to the 6.022 into 10 का पावर 23. जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं फ्रेंड्स, 1 mole of hydrogen atom is equal to 6.022 into 10 ka power 23 atom. 1 mole of water molecules is equal to 6.022 into 10 ka power 23 molecules. 1 mole of sodium chloride is equal to 6.022 into 10 ka power 23 formula unit. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलिए देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है क्या. आप हमारे इस वीडियो के अंतिम तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें. यह हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है वो हमारा
ऑन हैंड राइटिंग, जो हमारा ऑन लिखा हुआ नोट्स उसके द्वारा बनाया गया है और काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस टॉपिक को बनाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मोल कॉन्सेप्ट। जितने भी एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर कंपाउंड बना लेते हैं, ये कंपाउंड का बनना ही केमिस्ट्री के 5 बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग ही गवर्न होते हैं, जिसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट in any physical or chemical reaction, mass before reaction is equal to mass after reaction, means mass neither be created nor destroyed. Law of conservation of mass given by Lavoisier. Lavoisier is father of chemistry. Exception in this law, न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्शन के बाद मास डिक्रीज होता है, बट न्यूक्लियर रिएक्शन में मास प्लस एनर्जी ये दोनों ही कंजर्व ही रहता है। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन एलिमेंट के एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन करने के बाद ही होगा। एग्जाम्पल है H2O, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे रसिया का हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 ही होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं, जो आइसोटोप्स C12, C14, वो आइसोटोप्स इसमें एक्सेप्शन के रूप में नज़र आते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन में। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे डाल्टन लॉ भी कहते हैं। डाल्टन लॉ के अनुसार जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे और जब किसी भी एक एलिमेंट का वेट फिक्स करेंगे तो दूसरा एलिमेंट का वेट सिंपल रेशियो में आ जाएगा। इसको हम आसानी से एग्जाम्पल में CHON का उपयोग करेंगे। जैसे C+O में देखेंगे हम, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सेकंड में कार्बन का 24, ऑक्सीजन का 32, फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, मतलब 16:32 इंटू 1:2 रेशियो। जब अगर कार्बन को फिक्स करेंगे तो ऑक्सीजन का वेट सिंपल रेशियो में आएगा। अब अगर ऑक्सीजन को फिक्स करें तो कार्बन का वेट सिंपल रेशियो में आएगा। जैसे H+O में देख सकते हैं, जो हम लोग फिक्स किए तो जो रेशियो आएगा 1:2 में आएगा। उसी प्रकार N+O में भी हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। इसमें N को फिक्स करेंगे देन ऑक्सीजन इन सिंपल रेशियो। नेक्स्ट हमारा लॉ है गेयर-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at some temperature and some pressure. N2 1 volume 3H2 3 volume react to gives 2 volume, मीन्स N2 जो गैस है हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो 2NH3 देगा, वो 2 वॉल्यूम ही होगा। ये गे-लुसिक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गे-लुसिक का लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एक्चुअली में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास ही होता है। जो बात डाल्टन ने 1803 में मास के लिए कहा था, वही बात गे-लुसिक ने 1808 में वॉल्यूम के लिए कहा। गे-लुसिक के लॉ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के बाद ग्रेट साइंटिस्ट आए जिसको हम लोग एवोगाड्रो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ स्टेट्स दैट सम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगेन आई रिपीट, सम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल को डायरेक्ट कर दिया तो अभी आसानी से समझा जा सकता है। 3 आइडेंटिकल कंटेनर मीन्स इक्वल वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन है जिसमें हीलियम N2 और O3 का ऑक्सीजन के साथ दिखाया गया है, तो सबका सेम ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इसका लैंग्वेज ऑफ डिफिनेशन बहुत पेचीदा है, सो लर्न विथ सिंपल ट्रिक। इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 होंगे और टोटल कंपाउंड 3 होंगे और ईच एलिमेंट 2 बार आ रहा है, मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। जैसे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में टोटल एलिमेंट 3 होगा और टोटल कंपाउंड 3 होगा। इसको आसानी से समझा जा सकता है। और जो ईच एलिमेंट है वो 2 बार आ रहा है, तो मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, C, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और 3 कंपाउंड हैं, CH2, मीथेन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और वाटर। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने मोल कॉन्सेप्ट पे।
तो मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, इसको हम लोग बहुत आसानी से फ्रेंड समझेंगे और बहुत कम समय में ही मोल कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास में हम मोल, जैसा कि आप जानते हैं मोल बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है। मोल अब एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस है। मोल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर, मास और वॉल्यूम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 दर्जन आम में कितने आम होते हैं, जैसा आप आराम से बता सकते हैं 12, तो 1 दर्जन एटम में कितने एटम होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे दर्जन का मतलब एक डिफिनिट नंबर होता है, ठीक वैसे ही मोल भी एक डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इसे हम लोग Na भी कहते हैं, मतलब अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। फ्रेंड्स, 1 मोल एटम इज मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। 1 आयंस मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23 आयंस। 1 रुपीज मीन्स 6.022 इंटू 10 का पावर 23 रुपीज। 1 मोल एटम्स इक्वल टू एवोगाड्रो एटम्स या Na एटम्स। 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू Na मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयन इक्वल टू Na आयंस। Means mass of 1 mole atoms equal to atomic mass ग्राम में and ग्राम equal to ग्राम atomic mass। फ्रेंड्स, इसको आप दोबारा अच्छे से समझिए। मास ऑफ 1 मोल एटम्स इक्वल टू उसका एटॉमिक मास ग्राम में या ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। किसी भी एलिमेंट का 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स की वेट को ही ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। किसी भी एलिमेंट का 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल की वेट को ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे मास ऑफ 1 मोल एटम इक्वल टू एटॉमिक मास। चूंकि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स इक्वल टू एटॉमिक मास होता है ग्राम में, तो मास ऑफ 1 एटम इक्वल टू एटॉमिक मास बाटा बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटॉमिक मास बाई Na मीन्स 1 बाई Na इक्वल टू 1 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मीन्स 1.66 इंटू 10 का पावर 24 ग्राम मीन्स 1.6 इंटू 10 का पावर 24 kg। 1 बाई Na इक्वल टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 एवोग्राम या 1 डाल्टन। कार्बन की 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स का मास ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है, जिसका वजन 12 ग्राम होता है। आप क्या सोच रहे थे कि C के 1 एटम का मास 12 ग्राम होता है? ऐसा नहीं है, चूंकि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 का जो वेट होगा 12 ग्राम होगा, इसलिए मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इक्वल टू 1 बाई 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इक्वल टू 12 बाई Na इक्वल टू 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट। C12 के Na एटम का मास 12 ग्राम, C12 के 1 एटम का मास 12 AMU, C12 के 1 बाई 12 एटम का मास 1 AMU। मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 60 बटा Na इक्वल टू 60 AMU एटॉमिक मास यूनिट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी डिस्कस मॉलिक्यूल। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम्स मीन्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम इक्वल टू मोलर मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। ये H2O का मॉलिक्यूल है। अब ऐसा 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम होगा, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O का वजन 18 AMU होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ मोल इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.4 लीटर ओल्ड, बट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू 22.7 लीटर न्यू, जो अभी हम लोग यूज करते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन है व्हाट इज SATP। फ्रेंड्स SATP मीन्स स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट मीन्स एनवायरमेंटल या सराउंडिंग। एट SATP T इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस एंड P इक्वल टू 1 bar। मीन्स एट SATP वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज 24.789 इक्वल टू 24.8 लीटर। सम बेसिक फार्मूला ऑफ मोल। मोल 3 चीज का इंफॉर्मेशन देता है फ्रेंड्स, नंबर, मास एंड वॉल्यूम। तो मोल का फार्मूला इन तीनों के रेस्पेक्ट में इस तरह है। व्हेन इन क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयंस। अगर क्वेश्चन में अगर आपका एटम मॉलिक्यूल और आयन दिया रहेगा तो मोल्स ऑफ एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई Na एवोगाड्रो नंबर। ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेन इन क्वेश्चन वेट ऑफ सबस्टांस गिवन देन। अगर क्वेश्चन में आपका वेट ऑफ सबस्टांस दिया हुआ है तो मोल्स अगर हम उसमें निकालेंगे एटम और आयन का तो उसमें जो फार्मूला यूज होगा वेट ऑफ सबस्टांस, वेट इन ग्राम्स बाई एटॉमिक या मास ऑफ मॉलिक्यूल या मास फार्मूला या मास ऑफ आयंस। ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन देन मोल्स ऑफ गैस एट STP या NTP मीन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन ग्राम बाई 22.4। मोलरिटी M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी M लीटर इंटू मोलरिटी। मोल्स इक्वल टू M इंटू V। Attention on this word carefully. Gram mole is equal to mole and 1 gram atom is equal to 1 mole atom. 1 gram molecule is equal to 1 mole molecule और 1 gram ion is equal to 1 mole ion. फ्रेंड्स अगर गैस के लिए मोल निकालना हो तो यूज कॉमन इंटर रिलेटेड फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बटा M, मतलब वेट हमारा ग्राम में रहेगा और इक्वल टू ये नंबर ऑफ पार्टिकल बटा Na या भी वॉल्यूम बटा 22.4। सर फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। बहुत आसानी से आप इसका दे सकते हैं आंसर, 12 मोल एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ C एटम इक्वल टू 12 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। स्टूडेंट मोल कैलकुलेट करने के ये प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं तथा सॉल्यूशन को हमारे सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। स्टूडेंट ये कुछ होमवर्क्स हैं जिसे आप बना के हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और स्टूडेंट अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट अगर आप मोल कॉन्सेप्ट में अपने कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल को और इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अरिहंत के द्वारा पब्लिश्ड एक बुक मास्टर रिसोर्स बुक इन केमिस्ट्री जिसके राइटर संजय शर्मा हैं, वो बुक को आप पढ़ सकते हैं। So dear student, I hope that you have understand today's topic with easy. We have tried to explain the whole topic to a short time. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you.